good evening. So welcome to my another video of Inspire Pharma. Okay, so last में हमने डिस्कस किया था डोपामिनर्जिक एगोनिस्टिक ड्रग विच आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसन डिजीज. इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अनदर कैटेगरी ऑफ ड्रग्स विच कैन बी यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसन डिजीज, इंजाइम इनहिबिटर्स ड्रग्स. अब डोपामिन इज वन ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर, तो कोई ना कोई एक इंजाइम उसके पीछे जरूर होगा जो इसकी डिग्रेडेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा. There are the two drugs which are responsible for the degradation of a dopamine and which are responsible for decreasing the concentration of a dopamine in the body. The name of the enzymes are the monoamino oxidase and COMT, that is catechol O methyl transferase. सो अगर हम इन दोनों इंजाइम्स के इनहिबिटर ड्रग को दे दें तो उससे क्या फायदा होगा? उससे हमारा ये बेनिफिट होगा कि डोपामिन की डिग्रेडेशन कम हो जाएगी एंड डोपामिन की कॉन्सेंट्रेशन हमारी बॉडी में बढ़ जाएगी. तो दिस इज अनदर therapeutic target, that is inhibiting the enzymes responsible for the degradation of a dopamine. So the first category of a drug is monoamino oxidase inhibitor. अब जो मोनो अमीनो ऑक्सीडेज इंजाइम होता है उसके फर्दर दो आइसो इंजाइम्स होते हैं, मोनोमाइनो ऑक्सीडेज ए एंड मोनो अमीनो ऑक्सीडेज बी. बट हमें क्या करना है, वी हैव टू इनहिबिट द ओनली मोनोमाइनो ऑक्सीडेज बी बिकॉज इज दैट इज मैक्सिमली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिग्रेडेशन ऑफ अ डोपामिन. सो मोनोमाइनो ऑक्सीडेज बी के जो इनहिबिटर ड्रग होते हैं उनका नाम है सेलिजिलिन एंड रेसाजिलिन. सबसे बात करते हैं सेलिजिलिन. इट इज द इनहिबिटर ऑफ selective inhibitor of monoamino oxidase enzyme. Okay, what is the benefit of giving the salicylic kind of a drug to the patient? One thing is that it increase the concentration of a dopamine inside in our body. Other than it also activate the dopamine receptors in our body. Okay, but there are the इसका एक साइड इफेक्ट क्या रहता है? It is irreversibly inhibit the monoamino oxidase enzyme. There are two kind of inhibition, enzyme inhibition. One is reversible, जिसमें क्या होता है हम उस चीज को रिवर्स कर सकते हैं, हम enzyme को दोबारा एक्टिवेट कर सकते हैं. But salicylin, in the case of salicylin, there is a irreversible inhibition. We cannot reactivate the enzyme. Okay, we cannot reactivate the monoamino oxidase enzyme. Okay, other than these things, this drug also induces the certain side effect. One of the major side effect which is caused by this drug is psychosis. The patient is in the confusion state. That's why this drug should not be given to the patient of suffering from obsessive compulsive disorder. ठीक है, हमने वहाँ पे हमने मेरी क्लास वीडियो में हमने डिस्कस किया हुआ है OCD क्या होती है. सो इस ड्रग को हमें OCD पेशेंट्स को नहीं देना है. Talking about the another drug which is the inhibitor of monoamino oxidase is a resalagine. This is a drug is very more potent than the salicylin. ये ड्रग ज़्यादा potent होता है. अब potent word का मतलब क्या है? If any drug is able to maximize produce maximum therapeutic effect in minimum concentration, so that's very good. So that resalagine is a very potent than the salicylin. Other than this thing, this drug is longer acting होता है और ये किसी भी तरह के excitatory side effect जिस तरह के salicylin induce करता है वो नहीं induce करता. So yes, we can give the resalagine which is the more better than the salicylin. So this is the two monoamino oxidase B enzyme inhibitors drug that we can give to the patients. Okay, उसके बाद बात करते हैं COMT inhibitors drug. Catechol O methyl transferase inhibitor drug. We can give the tolicapone or we can give the entacapone drug to the patient. Entacapone and tolicapone, they inhibit the catechol O methyl transferase by which they increase the concentration of dopamine inside the body. Further, they can cause the certain side effects also. Like जो entacapone होता है, it can cause a hallucination, it can cause a drowsiness, it can cause a dyskinesia and gastrointestinal bleeding kind of the side effects in the patient. क्योंकि टोलिकेपोन होता है उससे जो ये साइड इफेक्ट्स होते हैं वो थोड़े कम रहते हैं. Okay, so this is just a small explanation about catechol O methyl transferase inhibitors. We can give these drugs to the patient. The last dopaminergic related drug is the dopamine facilitator drugs. That's a very new kind of a treatment therapy. Dopamine facilitator example drug है amantadine.
दिस इज द डोपामिन फैसिलिटेटर। वैसे ये ड्रग जो होता है दिस इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फ्लुएंजा, ए वायरल इन्फेक्शन है, बट यस इट कैन बी यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसन डिजीज। Okay, this drug produces the effect pre-synaptically and post-synaptically also। आपको पता है कि हमारे दो तरह के न्यूरोट्रांसमीटर रहते हैं, प्री सिनैप्स न्यूरोट्रांसमीटर एंड पोस्ट सिनैप न्यूरोट्रांसमीटर। उन दोनों के बीच में गैप होता है जिसको हम सिनैप्स बोलते हैं। तो उन दोनों के उस सिनैप्स के बीच में न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है। अब ये जो हमारा डोपामिन फैसिलिटेटर एमानेटिडीन ड्रग है, इट कैन produce the action on presynaptic nerve terminals also and can also produce action on the postsynaptic nerve terminals। presynaptic nerve terminals में इसका एक्शन क्या रहता है, हमें पहले से ही पता है कि हमारा जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है दैट इज ऑलवेज बी स्टोर्ड इन द प्रीसिनेप्टिक नर्व टर्मिनल्स। अब जो ये डोपामिन है, जो एड्रेनलिन है, नॉन एड्रेनलिन है, ये सभी कौन सी कैटेगरीज में आते हैं? दिस ऑल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ कैटेकोलामाइंस। So this drug particularly increases the release of dopamine from the presynaptic nerve terminals, and also it decreases the reuptake of dopamine in the presynaptic nerve terminals. So this is one of the action which is induced by it. It also induces action on the postsynaptic nerve terminal। in the postsynaptic nerve terminals में dopamine के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। जब वो गैप में रिलीज होता है तो गैप में रिलीज होने के बाद वो उन रिसेप्टर्स के साथ जाके बाइंड होता है। पोस्ट सिनेप्टिक में ये क्या करता है, डोपामिन के रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है। सो दैट्स हाउ इट इज प्रोड्यूसिंग द एक्शन। पहले तो प्री सिनेप्स से वो गैप में रिलीज हो गया, गैप में रिलीज होने के बाद वो डोपामिन के रिसेप्टर के साथ बाइंड भी हो रहा है। सो दिस इज हाउ इट प्रोड्यूसेस द एक्शन। ओके, सो टिल नाउ हमने पार्किंसन डिजीज में डोपामिन रिलेटेड ड्रग्स के बारे में पढ़ लिया है। हमने लीवोडोपा के बारे में पढ़ा विच इज द डोपामिन प्रिकर्सर। लीवोडोपा के साथ वो जो था ब्लड ब्रेन बैरियर में उतना पहुंच ही नहीं पा रहा था जितना हमें चाहिए था, तो हमने क्या किया, उसके साथ कार्बिडोपा दे दिया, ठीक है, विच इज द पेरिफेरल डी कार्बोक्सिलेज इनहिबिटर। लीवोडोपा, कार्बिडोपा। अदर देन दिस थिंग्स हमने डोपामिनर्जिक एगोनिस्टिक ड्रग के बारे में बात किया, ब्रोमोक्रिप्टिन, परगोलाइड, इसके बारे में बात किया। अदर देन दिस थिंग्स हमने मोनो अमीनो ऑक्सीडेज एंजाइम के बारे में बात की, हमने कैटेचोन ओ मिथाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम इनहिबिटर्स के बारे में बात की, एंड लास्ट एंड नॉट लीस्ट हमने डोपामिन फैसिलिटेटर के बारे में बात की। सो दिस ऑल आर द combination, all are the treatment which can be used to increase the concentration of a dopamine in the body। और ये भी याद रखना, एमानेटिडीन जो हमने बात की थी वो अगर तो वेरी लो केसेस हैं, बंदे का केस इतना सीवियर नहीं है तो उसको हम सिंगल दे सकते हैं पेशेंट को, बट इन एडवांस केसेस की पेशेंट की कंडीशन काफ़ी एडवांस पहुंच चुकी है और सीवियर केस है तो उस केस में हम उसको लीवोडोपा के साथ कॉम्बिनेशन में दे सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एसिटाइलकोलिन को हम क्या कर सकते हैं, उसके साथ हम क्या छेड़छाड़ कर सकते हैं जिससे, और उसके किस पॉइंट पे टारगेट कर सकते हैं जिसके उससे कॉन्सेंट्रेशन कम हो। ठीक है, आई थिंक आई एम क्लियर विद माई स्ट्रेटजीज विच कैन बी यूज टू पोटेंशिएट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ डोपामिन and to provide a symptomatic relief to the Parkinson disease by increasing the concentration of dopamine। Thank you so much. We will meet in the next video.